Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. In last lecture, we were studying about the social degradation. वो पॉइंट पढ़ रहे थे ये अपना सोशल पॉलिटिकल रीजन फॉर चूजिंग बुद्धिज्म फॉर द अनटचेबल्स. इसके अंदर का बी पॉइंट पढ़ रहे थे अपन. द सोशल डिग्रेडेशन ऑफ द अनटचेबल हैविंग had religious sanctions under Hinduism. The untouchables have nowhere to go but to get to the gas chamber of Hinduism. अभी अनटचेबल्स को कुछ तो डिग्निटी चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए. तो क्या है, they were trying to convert themselves like religion like Christianity, Islam, Buddhism, Sikhs. Therefore, conversion to other religion had become popular among the untouchables. Then they will get it the moment they get out of Hinduism and convert to other religion. Dr. Ambedkar emphasized the need of the untouchables for self-respect, the reality of the division between caste Hindu and depressed class which had to be acknowledged if any justice was to be done. The belief that the Brahmins, deep ingrained ethnicity, has preserved a reconstruction of Hindu society and stood in the way of aversion of vested right for the common good. Dr. Ambedkar investigated that the Hindu society was static, untouchable was recognized by Hindu religion, and caste was the cornerstone to the arch of Hinduism. However, the reason for which Dr. Ambedkar preferred the Buddhism can be summarized thus. He tried to prove that the untouchables were Buddhist. Untouchable had made it clear that today's untouchable were once Buddhist. Buddhism was an Indian region of the Buddha was nearer to the untouchable masses. The untouchable would join with the world Buddhist community and thus the way for world brotherhood. Dr. Ambedkar believed that all rights-minded people and Buddhists the world over will hail the return of the Buddha to his homeland without much formality, traditions and protocols. He added that Buddhism teaches social freedom, intellectual freedom, economic freedom and political freedom, equality not between men and men only but between men and women also. The day before his conversion, he added that the greatest benefit he had conferred on the country was by embracing Buddhism. The Buddha stood for equality and he was also the greatest opponent of Chaturvarma. He preached against it, fought against it and strived hard to uproot it. According to Hinduism, neither a Shudra nor a woman could become a teacher of religion and not they could become a sannyas and preach God. But Buddhism में कैसा था? Men, women, even women can become the bhikshunis. He believed that Buddhism would give the untouchable the sense of self-respect and freedom from the domination of caste. Hindu group, the conversion oath derived by Dr. Ambedkar at the Nagpur ceremony not only contained positive statement about Buddhism such as taking a vow to follow the eightfold path of Lord Buddha, but also negative statement against Hinduism. Then the path shown by Dr. Ambedkar was the salvation of the downtrodden classes through taking refuges in the Buddha Dharma. Dr. Ambedkar viewed that the untouchable had a glorious past and that was said to be the glorious Buddhist period of Indian history. Then moving towards the next point. Then Dr. Ambedkar said कि बाबा a Buddhist can provide the scheduled caste instant rich historical past, spiritual heritage and cultural pride which are essential ingredients for any society to survive. Lord Buddha once again said, if a drop of water is to be saved from extinction, it must be dropped in the ocean which will never dry. उसी तरह से small group desire to live as respectable human being, they must become Buddhist religion which is a big ocean of equality, and this ocean can save you and give you respect and dignity.
He was a fundamental revolutionary. Dr. Ambedkar gave a call not only to those downtrodden and oppressed, but to all Indians to break down their shackles and bond by seeing the truth in the Buddhist way of life and creating a new society of harmony and happiness around them. Then moving towards the next point, that is the characteristics of religion. Dr. Ambedkar has given 4 characteristics of religion. Religion in the sense of morality must therefore remain the governing principle in every society. See, religion क्या है, in the sense of morality क्या है, it must remain the governing principle in every society. Religion, if it is to function, must be in accord with reason, which is merely another name for science. See, religion if it is to function, अगर religion आप चाहते हो अच्छे से काम करें, right, must be in accordance with reason, which is merely another name for science. Its moral code must recognize the fundamental tenets of liberty, equality and fraternity. See, उनका moral code क्या है, एक moral code रहना चाहिए, उसके अंदर किसको importance देना चाहिए, liberty, equality and fraternity में. Unless a religion recognizes these 3 fundamental principles of social life, religion will be doomed. See, जब तक ये fundamental principles ध्यान में नहीं लाओगे, तब तक social life, religions will be doomed. Religions must not scancify or ennoble poverty. According to him, what is called religion by Hindu is nothing but a multitude of commands and prohibition. And then moving towards the next point, that is the ideas of religion. The following are the Dr. Ambedkar's thought about religion. He and his follower burned Manusmriti. See, उसके और उसके followers जो थे, what they did, they burned the Manusmriti. It was a revolutionary step which sought to denounce the inhuman laws of scripture. Throughout his life, Dr. Ambedkar made effort to reform the philosophical basis of Hinduism. See, Dr. Ambedkar ने क्या किया, पूरी ज़िंदगी उन्होंने नए नए फिलोसॉफीज, नए नए रिफॉर्म्स लाने में पूरी ज़िंदगी बिता दी. एवरी हिंदू इज़ अ स्लेव ऑफ द वेदा एंड शस्त्रस. और ये क्या बोल रहे हैं, हर हिंदू, सब हिंदू क्या है, ये एक स्लेव्स है ऑफ वेदास एंड शस्त्रस. ही सेड द रूट ऑफ अनटचेबिलिटी इज इन हिंदू स्क्रिप्ट. सी, अब ये जो रूट ऑफ अनटचेबिलिटी ये हिंदू स्क्रिप्ट में ही है. ही सेड दिस स्क्रिप्चर आर रॉन्ग एंड देयरफॉर नीड टू बी डिस्कार्डेड. सी, ये जो हिंदू स्कल्पचर्स वगैरह है यही सारे गलत है, अनटचेबिलिटी यहीं पे है. अगर ये स्कल्पचर से सारे हटा देंगे, स्क्रिप्ट से सारे हटा देंगे, तो क्या है, अनटचेबिलिटी अपने आप मिट जाएगी. ही शोड हाउ theological support was taken by the upper caste and systematically suppressed the Shudras and denied rights to them. See, फिर उसने बताया how theological support was taken by the upper caste. ये अपर कास्ट ने कैसा सपोर्ट लिया था और उन्होंने बाकी शूद्रास को किस तरह से हरास किया था और उनके सारे राइट्स भी ले लिए थे. ही डिनाइड थियोलॉजिकल सपोर्ट टू द कास्ट सिस्टम. तो ये जो थियोलॉजिकल सपोर्ट है वो भी उसने कास्ट सिस्टम को नहीं दिया. देन रिजेक्टेड हिंदुइज्म. According to Dr. Ambedkar, Hindu religion has certainly drawbacks. Example, Hindu laws are not uniformly applied to all. As per Dr. Ambedkar क्या है, Hindu religion has certain drawbacks. बहुत से हिंदू रीजन के क्या है, बहुत से ड्रॉबैक्स हैं. एक तो क्या है, हिंदूज लॉ. हिंदू लॉ क्या है, ये हर जगह एक जैसे अप्लाई नहीं हुआ है. इन वन ऑफ हिज स्पीचेस ही सेड दैट रिलीजन इज फॉर मैन एंड नॉट मैन फॉर रिलीजन. से एक स्पीच में तो उन्होंने सीधा बोल दिया रिलीजन क्या है, रिलीजन आदमी के लिए है, आदमी किसी रिलीजन का मोहताज नहीं है. बराबर है ना. ही ऑल्सो पुट फॉरवर्ड सम क्वेश्चंस टू द डिप्रेस्ड क्लासेस. उसने कुछ सवाल ये जो डिप्रेस्ड क्लास है उनके लिए भी रखे.
लाइक वाई डू यू वॉन्ट टू रिमेन इन एनी रिलीजन विच प्रोहिबिट यू फ्रॉम एंटरिंग सोशल प्लेस एंड इट्स टेम्पल। उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास के सामने एक क्वेश्चन भी ऐसा खड़ा कर दिया, आपको वो रिलीजन क्यों फॉलो करना है जहाँ पे आप सोशल प्लेसेस मंदिर भी नहीं जा सकते, वैसा रिलीजन क्यों फॉलो करना है आपको, आप वैसा रिलीजन फॉलो ही मत करो ना। डॉक्टर अम्बेडकर believed that the religion which does not recognize a human being as a human being is not a religion। तो फिर डॉक्टर अम्बेडकर क्या बोलते हैं, जो रिलीजन इंसानों को इंसान के जैसा रहने नहीं देता वो रिलीजन क्यों फॉलो करना है, वो रिलीजन ही नहीं है एक्चुअल में। तो इसीलिए उन्होंने हिंदुइज़्म रिजेक्ट किया। मतलब देखो कितना अच्छा थॉट है ना, जहाँ पे इंसान को इंसान के जैसा रहने नहीं देते वो रिलीजन क्यों फॉलो करना है, इसी का रीज़न से उन्होंने क्या किया, ये हिंदुइज़्म रिजेक्ट कर दिया। देन मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड पॉइंट, अट्रैक्टेड टूवर्ड्स बुद्धिज़्म। सी अपन ने देखा ना वो बुद्धिज़्म के कितने फेवर में थे। बुद्धिज़्म वो उन्होंने एक शायद लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था, ही हैड कंपेयर्ड द हिंदुइज़्म एंड बुद्धिज़्म ऑल्सो, राइट। तो बस वो बुद्धिज़्म के कितने फेवर में थे ये अपने को पता ही है। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, अट्रैक्टेड टूवर्ड्स बुद्धिज़्म। डॉक्टर अम्बेडकर वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स बुद्धिज़्म as according to him Buddhism is based on the principle of liberty, equality and social justice। See, डॉक्टर अम्बेडकर वॉज क्या है, अट्रैक्टेड टूवर्ड्स बुद्धिज़्म। क्यों बुद्धिज़्म, और डॉक्टर अम्बेडकर बुद्धिज़्म पे से क्यों अट्रैक्टेड थे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग क्या है, ये जो बुद्धिज़्म है इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। His final act of revolt against injustice in the Hindu society was his embracing Buddhism along with millions of his followers in 1956. See, his final act of revolt against injustice. See, उनका final act of revolt against injustice in the Hindu society was his embracing Buddhism। और वो भी किसके साथ था, उसने बुद्धिज़्म फॉलो किया और उसके साथ बहुत से उसके फॉलोवर्स थे, मिलियंस ऑफ हिज फॉलोवर, उन्होंने भी उसका साथ किया। दैट वाज इन द ईयर 1956। डॉक्टर अम्बेडकर ऑल्सो इंसिस्टेड दैट इट इज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द अनटचेबल्स एंड दैट दे शुड बी रिप्रेजेंटेड एट ऑल लेवल ऑफ गवर्नमेंट। से उसके ऊपर डॉक्टर अम्बेडकर क्या बोलते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रमोट द वेलफेयर, लाइक ये अनटचेबल्स के लिए वेलफेयर के लिए उनके लिए प्रमोट करें और उनको गवर्नमेंट भी एक गवर्नमेंट में रिप्रेजेंट उनको एक रिप्रेजेंट करने का एक मौका दे, एक शेयर दे उनको, राइट। सी डॉक्टर अम्बेडकर ऑल्सो इंसिस्टेड दैट इट इज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट to promote the welfare of the untouchables and that they should be represented at all level of government. He was of the opinion that they should be represented at all levels of government। See? And they should be, और गवर्नमेंट के हर लेवल पे ये अनटचेबल्स रहने चाहिए, उनके कोई ना कोई तो रिप्रेजेंटेटिव्स रहने चाहिए, जैसे आज अपने यहाँ पे हर जगह है ये। He was of the opinion that they should be represented at all levels of government। He was of the opinion that sufficient representation in the governing bodies would enable the depressed class to redress grievances through legal means। अगर sufficient representations रहे in the governing bodies में तो क्या होगा, डिप्रेस्ड क्लास की भी जो प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, वो भी सारे सॉल्व हो जाएंगे, उनके ग्रीवियंस भी सारे थ्रू लीगल्स मीन से लीगल तरीके से सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। रिलीजन मस्ट नॉट scantify or make a virtue out of property। See, in May 1956, a talk by Dr. Ambedkar titled "Why I Like Buddhism and How It Is Useful to the World in Its Represented Circumstances" was broadcasted from the British Broadcasting Corporation, London. In this talk, Dr. Ambedkar said, "See, in May 1956, और टॉक बाय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बोल रहे हैं कि मुझे बुद्धिज़्म क्यों पसंद है और ये मुझे क्यों यूज़फुल है और ये वर्ल्ड को भी क्यों यूज़फुल है। ये उन्होंने ब्रॉडकास्ट में बोला था
and the broadcast was from the British Broadcasting Corporation, London. उसमें टॉक में what बाबा साहेब अम्बेडकर said is that I prefer Buddhism because it gives three principles in combination which no other religion does. See, उस ब्रॉडकास्ट में डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या बोला, वो बुद्धिज़्म क्यों प्रेफर कर रहे हैं, क्यों बुद्धिज़्म को इतना फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि बुद्धिज़्म में थ्री प्रिंसिपल्स का कॉम्बिनेशन है, और ये जो कॉम्बिनेशन है प्रिंसिपल्स का, ये बाकी किसी रिलीजन में इसका कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा आपको. बुद्धिज़्म टीचर्स प्रज्ञा, अंडरस्टैंडिंग एज अगेंस्ट सुपरस्टिशंस एंड सुपरनैचुरलिज्म. बुद्धिज़्म क्या है? बुद्धिज़्म टीचर्स प्रज्ञा, करुणा एंड समता. दिस इज़ व्हाट मैन वांट्स फॉर अ गुड एंड हैप्पी लाइफ. सी, अपने को अगर सुखी लाइफ जीना है तो अपने को क्या चाहिए? ये सुपरस्टिशंस वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, प्यार चाहिए और इक्वलिटी चाहिए, तभी अपना लाइफ अच्छे से बढ़ जाएगा, राइट. तो ये सारी चीज़ें, ये तीनों कॉम्बिनेशन सिर्फ बुद्धिज़्म में है, और यही इंसान को खुश रहने के लिए चाहिए. नाइदर गॉड नॉर सोल कैन सेव सोसाइटी. सी, ना ही भगवान ना ही आपका सोल आपकी सोसाइटी बचा सकता है. देन परस्यूड द इंडियन सोसाइटी एज अ कास्ट सोसाइटी. सी, द हिंदू सोसाइटी a major component of the Indian society according to him is but a collection of caste. Each caste is conscious of its existence. See, the Hindu society a major component of the, ये जो हिंदू सोसाइटी क्या है, इट इज़ वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ द इंडियन सोसाइटी अकॉर्डिंग टू हिम इज, ये कलेक्शन ऑफ कास्ट है और ईच कास्ट इज कॉन्शियस ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस. सी, इसके अंदर बहुत से कास्ट है और हर कास्ट अपने अपने इसके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है. फर्दर डॉक्टर अम्बेडकर ऑब्जर्व दैट देयर इज़ नो कॉमन कॉन्शियसनेस अमंग द कास्ट. फिर डॉक्टर अम्बेडकर ने फर्दर ऑब्जर्व किया और बोला कोई भी कास्ट में ना ये कॉमन कॉन्शियसनेस नहीं है, एंड देयरफॉर सच अ कास्ट सिस्टम प्रिवेंट कॉमन एक्टिविटी, एंड बाय प्रिवेंटिंग कॉमन एक्टिविटी इट हैज़ perverted the Hindus from becoming a society with a unified life and a consciousness of its own being. See, therefore, such a caste system prevents common activity, and by preventing common activity, it can prevent the Hindus from becoming a society with a unified life and a consciousness of its own being. Dr. Ambedkar was वेरी पेन्ड बाय द कास्ट सिस्टम. डॉक्टर अम्बेडकर को कास्ट सिस्टम बिल्कुल नहीं पसंद था, वो बहुत कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे. ही आर्ग्यूड दैट इट इज़ द कास्ट सिस्टम ऑफ हिंदू सोसाइटी विच हैज़ कम्प्लीटली डीजनरेटेड एंड डिवाइडेड द होल नेशन. सी, और उन्होंने आर्ग्यू किया दैट जो कास्ट सिस्टम है ऑफ द हिंदू सोसाइटी विच हैज़, ये कम्प्लीटली डीजनरेटेड है और इसने पूरा नेशन डिवाइड कर दिया है. अभी क्या है, अभी कास्ट सिस्टम ख़त्म करना है और पूरा नेशन अपने को यूनाइट करना है, और सब कुछ एंड एवरीथिंग शुड बी डन इन अ मॉरल एंड इन अ प्रॉपर वे, एंड दैट देयर वाज एन अर्जेंट नीड ऑफ मॉरल रीजनरेशन ऑफ हिंदू सोसाइटी. सी, और अपने को एक अर्जेंट नीड है ऑफ मॉरल रीजनरेशन ऑफ हिंदू सोसाइटी. Indian Hindu society, according to him, it is the caste of people which determine their class. See, Indian Hindu society, according to him, it is the caste of people which determines their class. There is no scope for the growth of the sentiments of equality and fraternity. See, यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है for the growth of the sentiments of equality and fraternity. It has completely disorganized and demoralized the Hindu. See, अभी यहाँ पे कोई स्कोप ही नहीं है फॉर द ग्रोथ ऑफ द सेंटिमेंट्स ऑफ इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी. इसलिए क्या है, इट हैज़ कम्प्लीटली डिसऑर्गेनाइज्ड एंड मॉरलाइज्ड द हिंदू. हेंस डॉक्टर अम्बेडकर वॉज द प्रोटोगेनिस्ट ऑफ अ न्यू सोशल ऑर्डर. इसलिए अपन डॉक्टर अम्बेडकर जो नया सोशल ऑर्डर आया है, it is just because of Dr. Ambedkar. Her religion was national, social and utilitarian.
See, religion, according to Dr. Ambedkar, is a social force which cannot be ignored. See, religion to Dr. Ambedkar क्या है? Is a social force and it cannot be ignored. He considered religion important because it is essential for human beings who are social animals, and also because man is an intellectual being. See, he considered religion इम्पोर्टेंट. वो रिलीजन को इम्पोर्टेंट क्यों दे रहा है? बिकॉज इट इज़ एसेंशियल फॉर ह्यूमन बीइंग हु आर सोशल एनिमल. रिलीजन आज एक ज़रूरी है. क्यों? अपन एक ह्यूमन बीइंग है एंड वी आर सोशल एनिमल. और क्या है, अपन क्या है, अपन को एक दिमाग भी दिया है सोचने समझने के लिए. भगवान ने अपने को दिमाग भी दिया है. इन हिज ओन वर्ड्स, मैन कैन नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन एंड ही हैज़ अ माइंड विच नीड्स फूड फॉर थॉट. इन हिज ओन वर्ड्स वो क्या बोल रहा है? मैन क्या है, सिर्फ खाने से नहीं रह सकता, उसको खाने के अलावा भी और बहुत सी चीज़ें ज़रूरत रहती है. लाइक ही नीड सोसाइटी टू लिव एंड ऑल. डॉक्टर अम्बेडकर अप्रोच टूवर्ड्स रिलीजन वॉज नॉट द ट्रेडिशनल वन विच अकॉर्डिंग टू हिम वॉज बिलीफ इन गॉड, बिलीफ इन सोल, वर्शिप ऑफ गॉड, फॉलोइंग रिचुअल्स. सी, डॉक्टर अम्बेडकर अप्रोच टूवर्ड्स रिलीजन वॉज नॉट द ट्रेडिशनल वन. अब डॉक्टर अम्बेडकर का ये जो अप्रोच है टूवर्ड्स द रिलीजन, ये क्या है? सिर्फ ट्रेडिशनल वन नहीं है. विच अकॉर्डिंग टू हिम वॉज बिलीफ इन गॉड. उनके मुताबिक क्या है? भगवान में बिलीफ रखो, सोल में बिलीफ रखो, वर्शिप ऑफ गॉड, फॉलोइंग रिचुअल, सेरेमनी, सैक्रिफाइस, ये सब नहीं है. बट हिज अप्रोच टूवर्ड्स रिलीजन वॉज नेशनल, सोशल एंड यूटिलियन. बट उनका अप्रोच टूवर्ड्स रिलीजन कैसा था? वॉज नेशनल, सोशल एंड यूटिलियन. हिंदू रिलीजन हैज़ सर्टन ड्रॉबैक्स. सी, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अम्बेडकर, हिंदू रिलीजन हैज़ सर्टन ड्रॉबैक्स. लाइक द हिंदू लॉज आर नॉट यूनिफॉर्मली अप्लाइड टू ऑल. इट इज़ बेस्ड ऑन कास्ट सिस्टम. सी, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अम्बेडकर क्या है? हिंदू रिलीजन के पास सर्टन ड्रॉबैक्स है, राइट. और उनमें जो लॉज है वो सब जगह यूनिफॉर्म नहीं है, सब जगह एक जैसे लॉज नहीं है. इट reduces the life to the external imposed rule etc. It reduced life to the external imposed rule etc. In one of his speeches he said that religion is for men and not men for religion. अपन ने पहले भी सुना है. उन्होंने अपने स्पीच में क्या बोला है? ये जो रिलीजन है इज़ फॉर men and not men for religion. He also put forward certain question to the depressed class like, why do you want to remain in the religion which prohibit you from entering its temple. See, ये अपन ने पहले भी देखा. उसने जो डिप्रेस्ड क्लास से उन पे सवाल खड़े किए, उनको क्वेश्चन किया, आपको ऐसा रिलीजन क्यों फॉलो करना है जहाँ पे आप टेम्पल नहीं जा सकते, पब्लिक प्लेसेस नहीं जा सकते. वाई डू यू रिमेन इन दैट रिलीजन विच बार्स यू फ्रॉम डिसेंट ऑक्यूपेशंस एंड जॉब. सी, आपको उस रिलीजन में क्यों रहना है जहाँ पे आप ढंग से आपके मुताबिक आप काम भी नहीं कर सकते, ना ही आपके हिसाब से आपको काम चूज़ भी नहीं कर सकते, ना ही आपके हिसाब से आप जॉब कर सकते हो. डॉक्टर अम्बेडकर बिलीव दैट द रिलीजन विच डज नॉट रिकॉग्नाइज अ ह्यूमन बीइंग एज अ ह्यूमन बीइंग इज नॉट अ रिलीजन. सी, डॉक्टर अम्बेडकर बिलीव दैट द religion which does not recognize a human being as a human being is not a religion. Therefore he rejected Hinduism. इसलिए उसने Hinduism reject किया. Dr. Ambedkar was attracted towards Buddhism as according to him Buddhism is based on principle of liberty, equality and social justice. His final act of revolt against injustice in the Hindu society was his embracing Buddhism along with millions of his followers in 1956. Then priority to social reform. He gave priority to social reform. से डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या दिया? प्रायोरिटी दिया to social reform. He believed if priority is given to political emancipation, it would means transfer of power from foreign rule to the upper caste Hinduism. See, he gave priority to social reform. He believed कि अगर प्रायोरिटी दी गई तो पॉलिटिकल इमेंसिपेशन के लिए तो क्या है? इट मीन्स ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम फॉरेन रूल टू अपर कास्ट हिंदुइज्म. Dr. Ambedkar's
मेन बैटल वॉज अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। सी, डॉक्टर अम्बेडकर का सबसे बड़ा बैटल किसके अगेंस्ट था? इट वॉज द कास्ट सिस्टम। ही अटैक्ड ऑन द कास्ट सिस्टम, उन्होंने कास्ट सिस्टम पे बहुत अटैक किया। अकॉर्डिंग टू हिम कास्ट इज एन ऑब्स्टेकल इन द ग्रोथ ऑफ नेशनल स्पिरिट। इसलिए कास्ट सिस्टम क्या है? इट वॉज एन ऑब्स्टेकल ऑन द ग्रोथ ऑफ अ नेशन स्पिरिट। इट डज नॉट अलाउ प्रोग्रेस ऑफ द लोअर कास्ट। सी, ये कास्ट सिस्टम की वजह से क्या है? लोअर कास्ट का प्रोग्रेस नहीं होता। इट डिमोरलाइज द लोअर क्लास। ही शोड हाउ theoretically support was taken by the upper caste and systematically suppressed the Shudras and denied the right to them. See, he showed, उसने बताया how theoretical support was taken by the upper caste and ये शूद्रास को किस तरह से उसने दबा के रखा और उनके सारे राइट्स भी छीन लिए गए थे। He created self respect among the untouchables. अभी अनटचेबल्स उनके साथ इतने जुल्म किए जाते थे कि उन्होंने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी छोड़ दिया था। तो डॉक्टर अंबेडकर ने उनके बीच में सेल्फ रिस्पेक्ट लाया। ही डिनाइड थियोलॉजिकल सपोर्ट टू द कास्ट सिस्टम। उन्होंने कास्ट सिस्टम को बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो क्या था? कास्ट सिस्टम गलत था। अपन ने थॉट ऑन कास्ट सिस्टम ये ख़त्म कर दिया है। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर विल बी स्टडिंग द थॉट्स ऑन डेमोक्रेसी। सबसे पहले फुल लेके फिर अंबेडकर के थॉट्स पढ़ेंगे अपन और फिर बुद्धिज़्म के बारे में वापस विल बी स्टडिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। मीनवाइल रीड द टॉपिक वेल। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन मेल मी ऑन माई मेल ID. My mail ID is rasika.pagaria@arahamedu.in. Thank you.